Hello friends, welcome to the part 3 of reserves and provisions in accountancy. In the previous parts, we learned about reserve, general reserve, specific reserve, then investment in reserve and the reserve fund. So let us start today's video. Before that, I would like to tell you that I would be explaining each of the topics in Hindi as well as in Hindi as well as in English. Okay. So let us start with our first topic of the day, which is a capital reserve. So what is a capital reserve? Capital reserve is a reserve created out of capital profits which is not from normal trading activities. It is used for specific capital purposes like writing off capital losses or issuing bonus share. It is not available for dividend distribution to shareholders. So अभी कैपिटल रिजर्व एक्चुअली क्या होता है हम लोग जानेंगे. तो कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट्स यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है उसके अलावा जो प्रॉफिट्स मिलता है उससे जो रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, तो उस रिजर्व्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. ये कभी भी है ना डिविडेंड के लिए यूज नहीं होता है, ये ऐसे पर्पसेस के लिए यूज होता है जैसे कि कैपिटल लॉसेस है उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए या फिर बोनस शेयर इशू करने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, उन सब चीजों के लिए जब हम लोग रिजर्व बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. नाउ वी विल लुक एट सम key features of a capital reserve. So first of all, capital reserve is created out of capital profit. That is, it is formed out of profit which does not arise from regular business operations. Example are like profit on sale of fixed assets or premium on issue of shares or debentures. Okay, so these are some of the sources of capital reserve. Next is it is not available for dividend distribution. Unlike revenue reserves, capital reserves cannot be distributed as dividends to shareholders. They are retained from strengthening the financial position of a company. Third is it is a specific, that is purpose oriented. The use of capital it is used for capital adjustments such as writing off capital losses, issuing fully paid bonus shares, like meeting obligations like redemption of preference share, etc. So these are some of the key features. अभी हम देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व के कुछ की फीचर्स हिंदी में. तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि वो कैपिटल प्रॉफिट्स है उससे निकलता है. अभी कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उसके अलावा जब हमारी बिजनेस को अनयूजुअली प्रॉफिट होता है, जैसे कि किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेच के उनको कुछ प्रॉफिट मिला, या फिर हम लोग जो सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी कि शेयर या डिबेंचर इशू जब हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट प्रीमियम करके मिलता है, तो जो प्रीमियम हो गई ये है हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स. तो इससे जब हम लोग रिजर्व बनाते हैं तो या इनके लिए जब हम रिजर्व बनाते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व. अब ये जो कैपिटल रिजर्व है वो हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं करते, ये सिर्फ हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज होता है और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि कैपिटल लॉसेस है उनको पूरा रिकवर करना, या फिर हम लोग जब भी बोनस शेयर इशू करेंगे तो फुल्ली पेड होते हैं तो उनके लिए फंड लगता है, तो इस चीज के लिए हम लोग कैपिटल रिजर्व्स को यूज करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम मोर ऑफ द की फीचर्स. So it is shown in balance sheet on the liability side, that is credit side, under reserves and surplus, right? Then in some cases it is legally required to maintain capital reserves. For example, capital redemption reserve, which is created when preference shares are redeemed out of profit. Then it improves financial stability by locking profit into reserves. The company strengthens its capital base and ensures that funds are available for long-term obligations. Then it is non-operating in nature, since it is created from capital profits which are not arising day to day. Means you will not sell fixed assets every day or every month, right? You would sell sometimes and sometimes you will gain some profit on those. So these types of profit are which are used in capital reserves. Okay. तो हम लोग अब इन चारों की फीचर्स को ध्यान से देखेंगे हिंदी में. तो पहला ये है कि है ना वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, तो हमें लायबिलिटी साइड में देखने को मिलता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग है उसके नीचे.
कुछ केसेस में ये लीगली रिक्वायर्ड भी होता है, जैसे कि कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व है, जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम यानी कि है ना वापस यूज करना है, तब उसके लिए जो भी प्रॉफिट होता है तो उसके लिए रिजर्व होता है, वो होता है कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व। फिर ये कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, और क्योंकि है ना ये कैपिटल प्रॉफिट से अराइव होता है, तो इसलिए ये है ना नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है। Now we will look at some of the examples of capital reserve. So capital reserves are created for redemption, for example, a capital redemption reserve. It is created for redemption of preference share. Securities premium reserve. It is created for share premium used for issuing bonus share or writing of preliminary expenses or buyback of shares. Then there is revaluation reserve, which is created when assets are revalued upwards, used to absorb future revaluation losses. तो अब ये तीन एग्जांपल्स है कैपिटल रिजर्व्स के, अब हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला है कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व। ये किस लिए यूज होता है? जब भी हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना हो तो उसके लिए ये यूज होता है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, ये हम लोग जब शेयर्स पे प्रीमियम पे करते हैं तो उससे बनता है। और किस चीज के लिए यूज होता है? तो बोनस शेयर्स है उनको इश्यू करने के लिए यूज होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको मिटाने के लिए यूज होता है, या फिर किसी शेयर को कंपनी को बायबैक करना है तो उनके लिए भी यूज होता है। तीसरा है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये कब क्रिएट होता है? जब एसेट का रीवैल्यू होता है, हमने शायद से पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, तो उसमें हम लोग एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। तो जब भी है ना एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू के बढ़ती है तब ये रिजर्व बनता है, जिससे है ना हमारे जो फ्यूचर रिवैल्यूएशन के लॉसेस है, भी रिवैल्यू करेंगे तो या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए जो ये प्रॉफिट होता है उसके लिए ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है। So now we will move on to the next point, which is reserve capital. So what does this reserve capital actually mean? So reserve capital means that it is a part of subscribed capital. So it is a portion of subscribed capital of a company. It is not a separate fund but a part of company share. Do not confuse it with capital reserve. Okay, it is callable only when on winding up of the company. जो capital reserve, if you look at capital reserve, it can be used any time during the company's life. But reserve capital is a special kind of means reserve, which is used only when the company is about to shut off. So whenever we are going to wind up the company or the business, that time we use this reserve capital. Okay. So it can be demanded from shareholders only if the company is being wound up. Okay. So during normal business operation, it cannot be called up at all. It is created by special resolution. A company must pass a special resolution in general meeting to designate a portion of its uncalled capital as reserve capital. Okay. So ये जो reserve capital वो क्या होता है? तो reserve capital हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जब भी हम लोग शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसमें का अमाउंट होता है कि हमने कितने अमाउंट के जो है शेयर्स हम लोग इश्यू कर सकते हैं, तो इसे कहते या मीन्स हमने किए हुए हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो कंपनी के हम लोग कंपनी बाहर निकाल के रखते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अब ये जो रिजर्व कैपिटल है वो कभी भी यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ तभी यूज होता है जब कंपनी बंद होने वाली हो, जब आप कंपनी का सारा काम बंद करने वाले हो और उसके बाद है ना वाइंड अप कर रहे हो, तभी इस रिजर्व कैपिटल को बुलाया जा सकता है। नॉर्मल बिजनेस में नहीं बुलाया जा सकता। और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए भी एक कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करना पड़ता है कि कितना पोर्शन उसे हमें रिजर्व कैपिटल करके रखना है। There are some of the key points of reserve capital, like it is not shown in balance sheet. Since it is not called up during the company's lifetime, it is not shown in the separately in the balance sheet. It exists as a potential liability of shareholders. Now, it also provides security to creditors. It acts as safeguard for creditors, ensuring that in case of liquidification, that means the shutdown of the company can call up this amount from shareholders to pay off their debts.
and it cannot be revoked easily. Once a portion of the capital is designated as reserve capital, it cannot be undone except with the permission of the court. Okay, तो रिजर्व कैपिटल के कुछ की पॉइंट्स है उधर हम अभी देखेंगे. तो रिजर्व कैपिटल है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता. क्यों? अगर हम लोग इसे कंपनी की लाइफ टाइम में कभी यूज कर ही नहीं रहे तो उसे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन ये शेयर होल्डर्स के लिए एक लायबिलिटी जैसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग इसे नहीं दिखाते क्योंकि अभी हम लोग कंपनी बंद करने के टाइम पे ये कॉल ऑफ करते हैं तो क्रेडिटर्स को एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई कंपनी बंद भी हो गई तो भी है ना हमें पैसे मिलने के लिए एक सोर्स है, एक अलग से उन्होंने सोर्स रखा हुआ है ताकि हमारे पैसे हमें वापस मिल सके. तो इसीलिए क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी रहती है और ये आसानी से है ना ऐसा नहीं लग सकते कि नहीं हमने अभी ये है जो पोर्शन है इसे हमने रिजर्व कैपिटल रख दिया लेकिन अभी मन नहीं है इसलिए हम लोग वापस ले रहे. ऐसा नहीं कर सकते. जब तक आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो कोर्ट से तब तक आप इसे एक बार आपने उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कर दिया तो आप उसे वापस रिवोक नहीं कर सकते. नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व कैपिटल. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 10 lakh rupees, out of which 8 lakh is called up, means it can issue shares up to 10 lakh rupees, out of which 8 lakh it has sent an IPO of 8 lakh. Now a company passes a special resolution to keep 1 lakh as reserve capital out of those 8 lakh. So this 1 lakh cannot be demanded during normal operation. If the company is liquidated, that means if the company is going to wind up, the shareholders may be asked to pay this amount to settle the creditors. So this is what a reserve capital does. अभी हम लोग हिंदी में देखेंगे कि रिजर्व कैपिटल एक्चुअली काम कैसे करता है एक एग्जांपल के थ्रू. समझिए कि आपकी कंपनी है जो है वो 10 लाख के शेयर्स है वो उसने रखा हुआ है और उसमें से 8 लाख आपको मिले, मीन्स 10 लाख के शेयर्स आपने रखे हैं, 8 लाख आपको मिले हैं. ओके, उसमें से आप ये सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए है वो हम लोग रिजर्व कैपिटल करके साइड में रखेंगे. तो अब ये जो 1 लाख है वो आपने रिजर्व कैपिटल करके रख दिया तो अपने कंपनी के लाइफ टाइम में आप इसे यूज नहीं कर सकते, कितनी भी डायर सिचुएशन हो तभी नहीं यूज कर सकते. लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि कंपनी को बंद करना है, डेट्स को जो हमारे क्रेडिटर्स है उनको सेटल करना है, तो उस टाइम पे आप शेयर होल्डर से बोल सकते हो कि यह हमारा जो 1 लाख है रिजर्व कैपिटल उसे हमें वापस दे दीजिए ताकि हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर सके. So now let us move on to the last point of this video, which is capital reserve and reserve capital. Many of the people get confused because of their name. It is just two words jumbled around, so why we have to pay attention. But these are two completely different things. So reserve capital is a part of uncalled share capital available only at the winding up of the company. And capital reserve, it is created from capital profits for using specific कैपिटल पर्पसेस, राइट. सो अगर हम लोग देखेंगे रिजर्व कैपिटल रिजर्व के बीच का डिफरेंस तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 शब्द है, आगे पीछे रहती है तो आप मिसरीड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं. अब जो ये रिजर्व कैपिटल होता है वो शेयर कैपिटल से हम लोग लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं तो उससे जो फंड मिलता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होता है तो वहां से लेते हैं और वो तभी अवेलेबल होगा जब हमारी कंपनी लिक्विफाइड होगी, यानी कि बंद होने वाली होगी, तभी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं. और दूसरी तरफ कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कि है ना सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने है ना समझो कि एक फैक्ट्री बेच दी, उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिला तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट. उससे आपने जो रिजर्व बनाया जो कि आप किसी दूसरे कैपिटल पर्पस जैसे कि है ना बोनस शेयर के इशू के लिए, कैपिटल लॉसेस को मींस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हो, तो वैसे जो रिजर्व होते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व. एक आता है हमारा शेयर कैपिटल अनकॉल्ड शेयर कैपिटल से और दूसरा आता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट से. ठीक है, अब आप ध्यान से एक ट्रिक बताती हूँ. लेट मी टेल यू वन ट्रिक. सो शेयर कैपिटल, द कैपिटल कम्स एट द एंड, राइट. सो सेम वे ओवर हियर रिजर्व कैपिटल, इन बोथ ऑफ दीज वर्ड द वर्ड कैपिटल कम्स एट द एंड. इन दोनों ही शब्दों में रिजर्व कैपिटल और शेयर कैपिटल जो शब्द है वो एंड में आता है, तो इन दोनों को लिंक कर सकते हो. अगर शेयर कैपिटल से फंड आ रहा है तो फिर यानी कि वो एक रिजर्व कैपिटल है. एंड फॉर द नेक्स्ट ट्रिक, कैपिटल रिजर्व्स एंड कैपिटल प्रॉफिट्स.
these two words. In this, both the word capital are in the front. तो आप इन दोनों को लिंक कर सकते हो कैपिटल रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट्स में. जो कैपिटल शब्द है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप उन दोनों को लिंक कर सकते हो. यानी कि कैपिटल रिजर्व कहाँ से आएगा? कैपिटल प्रॉफिट में से. और रिजर्व कैपिटल कहाँ से आएगा? शेयर कैपिटल में से. So this was one small trick to understand from what are the sources of these reserve capital or capital reserve. Thank you for watching this video. If you अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.